Hello everyone. So we have covered a lot of ground right now and हम लोग सबसे interesting report पे पहुंच चुके हैं, which is the Sachar committee report, and this report is very important and we've discussed this earlier कि मतलब this was one of the this is the only report which looked at Indian Muslims from the Indian Muslim point of view and tried to compare the stats of Indian Muslims as compared to the other socio-cultural and religious groups that we have. So in this video we're going to talk about what were some of the most important findings from Sachar committee report and what does it tell us about the Indian Muslims, their socio-economic backwardness and marginalizations, and हम लोग इसमें थोड़ा वक्फ कमिटी पे और जो वक्फ जो स्टैटिस्टिक्स हैं हम लोग उस पर थोड़ा ज्यादा फोकस करेंगे कि व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ द वक्फ प्रॉपर्टीज इन इंडिया. बट ऑफ कोर्स वो एक बहुत ही ब्रीफ वे में हम लोग देखेंगे. देयर विल बी मोर वीडियोस दैट वुड कम ऑन specifically for the Waqf properties and the issues surrounding Waqf. So let's get on with it. So as we've discussed earlier, ये 2005 में report आई थी. So what's following right now is a couple of snippets from the report. कुछ important aspects हैं report के जो आपके साथ share करे जा रहे हैं. So ये जो हम लोग के पास जो प्रेजेंटेशन है, ये वाला जो टेबल है, इट्स अबाउट द पॉवर्टी लेवल्स अमंग इंडियन मुस्लिम्स. सो एट एन एवरेज अगर आप देखेंगे तो the national average for poverty, and again this is compiled from NSSO surveys or many other data sets. The Sachar committee established it to be around 22.8. If you look at the other religious, other socio-cultural groups such as the SC/STs, इसमें around 36% है उन लोगों में, and at a national average, Indian Muslims में poverty rate is around 38%, which is even higher than SCs and STs. So this is one of the most shocking but not really news information that came out of the Sachar committee report. And कुछ states को अगर देखा जाए जहाँ पे exceptionally high poverty है, and again हम लोग बात कर रहे हैं urban poverty की. There is another table which is on rural poverty and I've not included that in the presentation. वो आप लोग को report में मिल जाएगा. But rural Muslims are comparatively better off as compared to the urban Muslim counterparts, and this is an anomaly. हम लोग रंगनाथ मिश्रा कमेटी में हम लोग इस चीज को, इस एस्पेक्ट को डिस्कस किया था. So कुछ states जहाँ पे exceptionally high poverty rates हैं among Indian Muslims. First of all is Uttar Pradesh and Bihar, which is close to 45%. Again, urban poverty indexes. In Karnataka, it's around 45%, and of course these are head count ratios, right? So it's equivalent to percentage. So Maharashtra is around 49. Madhya Pradesh में even higher, it's 58%. Odisha around 48%. Chhattisgarh around 61%. It is shocking. So again, but Chhattisgarh में Muslim population भी जो है वो comparatively काफी कम है. So this is one of the shocking findings of the Sachar committee report. Now, if we talk about the average per household land owned, कि मतलब at an average एक मुस्लिम household जो है वो कितना land own करता है, तो national average जो है वो per household around 1.6 acres of land है. यानी कि at an average जो Indians हैं वो लोग 1.6 एकड़ लैंड होल्ड करते हैं, एंड देन हिंदू ओबीसीज में ये अराउंड 2 एकर्स बन जाता है. और उसके पीछे भी एक अच्छी कहानी है कि मतलब हाउ डिड द ओबीसीज एंडेड अप बिकमिंग सच पावरफुल लैंड ओनिंग क्लासेस इन इंडिया. खैर, the Muslim general में, and this is one of the few times कि मतलब सचर कमेटी रिपोर्ट जो है वो जनरल और ओबीसीज में, मुस्लिम जनरल और मुस्लिम ओबीसीज में डिफरेंशिएट करता है. बट as of the way they report things, it is less than the national average. As at an average household, एक मुस्लिम हाउसहोल्ड अगर अपर कास्ट है, जनरल यानी ऊपर कैटेगरी में है, तो वो अराउंड 1 एकड़ लैंड जो है वो होल्ड करता है, और मुस्लिम ओबीसी जो है वो अराउंड 0.7 एकर्स लैंड होल्ड करता है. अगेन ये नेशनल एवरेज का ऑलमोस्ट आधा है. सो इवन इन लैंड होल्डिंग मुस्लिम्स आर रियली बिहाइंड.
उसके बाद लिटरेसी लेवल्स अगर आप देखेंगे तो इट्स वेरी वेरी लेस, एंड ओवरऑल देखा जाएगा तो जैसे जैसे एज ग्रुप्स बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे उनका लिटरेसी लेवल कम होता जाता है, क्योंकि हम लोग जो नेशनल जो इनिशिएटिव्स हैं लिटरेसी के वो रिसेंटली डेवलप्ड हैं, तो हम लोग ने बच्चों पर ज्यादा हम लोग ने फोकस किया है। तो अभी का जो छोटा एज ग्रुप है उसमें रिलेटिवली हम लोग को ज्यादा लिटरेसी मिल जाएगी। एंड अगेन लिटरेसी की डेफिनेशन इन इंडिया इज वेरी वेरी प्रॉब्लमैटिक, तो खैर बट उस टेंजेंट में नहीं जाना है हम लोगों को। तो ये एक फैक्टर हम लोग को, एक ट्रेंड हम लोग को इन जनरल हमेशा देखने मिलेगा। जैसे अगर आप ओपन कैटेगरी जनरल अगर आप हिंदूज की बात कर रहे हैं, सो एज यू मूव डाउन फ्रॉम एज यू मूव डाउन और मूव अप इन द एज ग्रुप्स, जैसे 6 to 13 years, 14 to 15 years, सो जो लिटरेसी लेवल्स हैं वो कम होते जाते हैं। एट एन एवरेज अराउंड 80% ऑफ हिंदू अपर कैटेगरीज आर लिटरेट्स, ओबीसीज में ये कम होकर 63% हो जाता है, SC/ST में 52% हो जाता है, और मुस्लिम्स में एट एन एवरेज ये अराउंड 59% है, 60% है, which is very very less. So this is again a matter of concern. And मुस्लिम्स के साथ प्रॉब्लम जो है वो बहुत ही अर्ली एज में स्टार्ट हो जा रही है लिटरेसी की। अगर आप 6 to 13 एज ग्रुप का भी अगर आप सेक्शन देखेंगे तो there's around 75% लिटरेसी, which is almost constant of a 23 years and above में आके वो एकदम सब्सटैंशियली कम होता जा रहा है, अराउंड 46%। सो ये होप किया जा सकता है कि मतलब इफ दीज ट्रेंड्स कंटिन्यू विथ टाइम देयर शुड बी एन इंक्रीज इन लिटरेसी लेवल्स अमंग मुस्लिम्स, बट एज ऑफ नाउ इट्स रियली बैड। उसके बाद ये लिटरेसी की प्रॉब्लम कहां से आ रही है, तो एक इंटरेस्टिंग फाइंडिंग ये थी कि मतलब व्हाट सच्चर कमिटी ट्राई टू डू इज दे ट्राई टू एस्टिमेट द परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 years जो लोग कभी स्कूल गए ही नहीं या स्कूल जाके उन्होंने छोड़ दिया यानी ड्रॉप आउट कर लिया। तो ओवरऑल अगर इंडिया का अगर देखा जाएगा तो ड्रॉप आउट जो परसेंटेज है यानी कि 6 से 14 साल के तबके में कौन से ऐसे बच्चे जिन्होंने स्कूल जाना जो है वो कंप्लीटली छोड़ दिया है, तो वो अराउंड 10.5-11% है नेशनल एवरेज, बट इन मुस्लिम्स इट्स वे हायर, इट्स वेरी वेरी हायर। आप देख सकते हैं क्लोज टू 15% है, यानी कि 15% ऐसे बच्चे हैं इंडियन मुस्लिम्स में बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 years जिन्होंने स्कूल जो है वो कंप्लीटली छोड़ दिया है, दे हैव लेफ्ट स्कूल, और 7% ऐसे बच्चे हैं जो कभी स्कूल गए ही नहीं है, कभी उन्होंने स्कूल अटेंड ही नहीं किया, विच इज अगेन द हाईएस्ट अमंग वन ऑफ द हाईएस्ट अमंग ऑल कम्युनिटीज एंड रियली शॉकिंग, बट नॉट रियली अ सरप्राइज इफ यू लुक एट द पॉवर्टी इंडेक्सेस। अब किसी कम्युनिटी में पॉवर्टी इतनी ज्यादा रहेगी और गरीबी इतनी ज्यादा रहेगी तो फिर वो कहां से पढ़ाएंगे, और अगेन बट इसमें और भी सारे जो इश्यूज हैं वो हैं। बट अगेन ये 2005 का डेटा है, देयर इज नो कॉमेंट हियर कि इसमें जो राइट टू एजुकेशन जो पॉलिसी आई है उसमें मुस्लिम्स ने कितना बेनिफिट किया है। टू माई नॉलेज देयर इज नो डेटा on that as of yet for Indian Muslims specifically, but yeah again it would be interesting to see कि मतलब क्या हुआ फिर आगे जाके। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग फिगर है। ये पहले तो ये बात कर रहा है, ये वाली जो ब्लू लाइन चल रही है वो ये है कि उर्दू स्पीकिंग कितने बच्चे हैं परसेंटेज ऑफ द एंटायर मुस्लिम पॉपुलेशन, और जिनकी नेटिव जिनकी मदर लैंग्वेज जो है वो उर्दू है, उसके बाद कितने परसेंट ऐसे बच्चे जो उर्दू मीडियम स्कूल्स में जाके जो पढ़ रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है, क्योंकि उत्तर प्रदेश को कहा जाता है कि वहां पे मुस्लिम्स की पॉपुलेशन इतनी सब्सटैंशियल है, उर्दू का कह सकते हैं कि गढ़ रहा है वहां पे, तो एक्सपेक्टेशन ये करी जाएगी कि मतलब बहुत सारे बच्चे जो है मुस्लिम ज्यादातर जो है वो उर्दू मीडियम स्कूल्स में पढ़ते हैं, बट एक्चुअली दैट्स नॉट द केस। इवन दो ऑलमोस्ट 1 out of every 2 Muslim speaks Urdu as a mother tongue, the percentage of Muslim children who are enrolled in Urdu medium schools is very very insignificant in Uttar Pradesh। उर्दू का आपको सबसे ज्यादा जो स्कूल्स मिलेंगे और उसकी जो सबसे ज्यादा आपको फ्लरिश करती हुई आज के टाइम में मेरे एस्टिमेट में जहां पे मिले जाएगा वो महाराष्ट्र में मिलेगा आपको। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट जो भी जिनकी मदर टंग जो है वो उर्दू है, उन लोग की प्राइमरी एजुकेशन भी जो है वो उर्दू में हो रही है, विच इज काइंड ऑफ गुड, क्योंकि हम लोग चाहते हैं, इट्स अ मैटर ऑफ आवर एजुकेशनल पॉलिसी कि जो एजुकेशन हो वो मदर टंग में हो, and it helps develop children much better। but ये उर्दू वाली जो उत्तर प्रदेश वाली जो discrepancy है, it's kind of shocking and this was one of the things that came out of Sachar committee report। तो बच्चे पढ़ कहाँ रहे हैं,
ये एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, मुस्लिम बच्चे कहाँ जा रहे हैं। एक ये कहा जाता है कि मुस्लिम्स जो हैं वो बैकवर्ड इसलिए हैं क्योंकि वो लोग मदरसे में पढ़ते हैं, बट सच्चर कमेटी के जो एस्टिमेट्स थे फॉर द इयर्स बिटवीन द एज ग्रुप 7 to 16 years, close to 4%, only 4% of Muslim children were studying in madrasas, which is so less, right? उसके बाद प्राइवेट एजुकेशन जो है वो अराउंड 30% बच्चे जो हैं वो पढ़ रहे थे, एंड बल्क ऑफ द मुस्लिम्स, ऑलमोस्ट 2/3 of all Muslim children in the age group of 7 to 16 years, they are studying in government schools, and which is kind of understandable. पैसा ही नहीं रहेगा तो फिर कहाँ से प्राइवेट स्कूल और अच्छे स्कूल्स में पढ़ जाएंगे, but they're not studying in madrasas. So this is a very very big thing, because बहुत सारे लोग इस्लामोफोबिक आर्ग्यूमेंट्स देते हैं कि मदरसे में पढ़ते हैं इसलिए जो है ये बैकवर्ड है, बट वो मदरसे में नहीं, वो सरकारी स्कूल्स में पढ़ रहे हैं. सो इससे एक कंक्लूजन ये निकाला जा सकता है कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स और उनके इनिशिएटिव्स को इम्प्रूव करेंगे, स्ट्रेंथन करेंगे, उसका एक सब्सटैंशियल बेनिफिट जो है वो मुस्लिम चिल्ड्रंस को पहुंचना चाहिए. एंड दिस वुड बी रियली रियली इंटरेस्टिंग, क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट में हम लोग देख सकते हैं अंडर द आम आदमी पार्टी बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स को रेवोल्यूशनलाइज किया गया है, बट अगेन मुस्लिम्स कितना बेनिफिट किए हैं दैट स्टिल रिमेन्स टू बी सीन. इट्स एन ओपन एंडेड क्वेश्चन. उसके बाद ये एक इंटरेस्टिंग एस्टिमेट है, एंड आई थिंक इसमें भी सच्चर जो है वो 2004 और 5 का डेटा लेते हैं, या फिर 3 और 4 का. I need to correct myself, which is about how many Muslims are studying in IITs. और ये एक ब्रेकअप है, एंड सिंस आई ऑल्सो स्टडी एज अ पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट एट IIT बॉम्बे, फॉर मी दिस इज रियली इंटरेस्टिंग. एंड सच्चर कमेटी की जो डेटा है वो निकल कर ये आता है कि ओनली लेस देन 2% ऑफ मुस्लिम्स आर इन द अंडर ग्रेज इन IIT, और अंडर ग्रेजुएट्स जो है यानी कि बैचलर्स और बीटेक, दे फॉर्म द कोर ऑफ IITs इनटेक. सो बल्क ऑफ द स्टूडेंट, आप किसी भी IIT में जाएंगे, ज्यादातर जो आपको प्रोपोर्शन मिलेगा वो अंडर ग्रेजुएट्स का मिलेगा स्टूडेंट्स में, ओवरऑल स्टूडेंट्स में, एंड उसमें लेस देन 2% मुस्लिम्स हैं. बट जैसे जैसे आप अंडर ग्रेड से आप पोस्ट ग्रेड में जाते रहते हैं तो आपको जो है मुस्लिम परसेंटेज जो है वो बढ़ता जाता मिलता है. जैसे कि पोस्ट ग्रेजुएट में क्लोज टू 4% हैं मुस्लिम्स, एंड PhDs में क्लोज टू 5% हैं. अब इसके 2 रीजन है. एक सबसे पहले रीजन तो ये है कि देयर इज अ स्ट्रॉन्ग डिस्क्रिपेंसी. यहाँ पे जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं अंडर ग्रेजुएट्स वही इतना ज्यादा है, सो इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि जो परसेंटेज जो है वो निकल कर कम हो रहा है, एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स में क्योंकि द टोटल नंबर ऑफ people are less, so Muslims are kind of over represented there, but let's not forget that Muslims form 15% of the Indian population, so Muslims की population के भी proportional यहाँ पे representation जो है वो नहीं है. This is kind of a problem, but इसमें एक interesting aspect ये भी है कि जैसे जैसे मुस्लिम स्टूडेंट्स, and this is something which Sachar indirectly hints to, कि जैसे जैसे मुस्लिम स्टूडेंट्स जो हैं वो एक बार यूनिवर्सिटी पहुंच जाते हैं, एक बार पढ़ने लगते हैं, उनको वो एक एनवायरनमेंट मिलता है, सो उनको आइडियाज मिलते रहते हैं, उनको गाइडेंस मिलता रहता है, और उस गाइडेंस की मिलने की वजह से दे आर एबल टू परफॉर्म मच बेटर इन पोस्ट ग्रेजुएट एग्जामिनेशंस, जैसे कि एमटेक और PhDs वगैरह के लिए. और वो लोग अंडर ग्रेजुएट्स यानी IIT JEE वगैरह के लिए जो है वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, क्योंकि स्टार्टिंग में उनको उतना अच्छा गाइडेंस नहीं मिल पाता. सो दिस इज अगेन एन इंटरेस्टिंग फाइंडिंग, एंड इट अंडरस्कोर्स द इंपॉर्टेंस ऑफ career guidance एक बहुत important aspects and this needs to be done. ये भी इंटरेस्टिंग है. सो IIM एडमिशन प्रोसेसेस में कितने मुस्लिम्स का सिलेक्शन हुआ, और इसमें सच्चर ने एक इंटरेस्टिंग चीज करने की कोशिश करी कि परसेंटेज ऑफ मुस्लिम्स जो हैं वो ब्रेक डाउन करने की कोशिश करी एज पर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस. जैसे कि कितने लोग अपीयर हुए, उसका अनफॉर्चुनेटली उन लोगों के पास डेटा नहीं था, बट कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यूज के लिए क्वालिफाई हुए, उसके बाद कितने सिलेक्ट हुए, एंड हाउ मेनी एंडेड अप ज्वाइनिंग the institute. और उसमें जो हम लोग के पास निकल कर आता है कि the proportion of Muslims is almost constant. So around 1.5%, 1.4% student got selected for qualified for interview and group discussions. Similar percentage were selected and similar percentage ended up joining the institute IIMs. So इससे एक चीज ये निकल कर आ रही है, there are different levels of discrimination, but हम लोग को यहाँ पे कुछ सब्सटैंशियल डिस्क्रिमिनेशन देखने नहीं मिला, एटलीस्ट जो सच्चर ने जो है वो यहाँ पे जो हम लोग को डेटा दिया है उसमें.
अगर मान लीजिए जैसे कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इंटरव्यू वगैरह के लिए क्वालिफाई हो रहे होते हैं, लेकिन द प्रोपोर्शन दैट गेट सिलेक्टेड इन IIMs वाज सब्सटेंशियली लोअर, तो यानी कि वहां पे हम लोग कह सकते हैं कि ओके समथिंग इज हैपनिंग देयर, राइट, इन द इंटरव्यू प्रोसेस, यू नो. But that's not what we see from this data which Sachar has presented. And एक anecdotal बात अगर ये करी जाएगी तो वो ये करी जाएगी कि the percentage of Muslims that are able to apply and that are applying for these tests, these national level examinations and competitions is very less to begin with. बच्चे हैं ही नहीं वहां पे जो appear हो रहे हैं, so selection कैसे होगा? तो ये भी एक बहुत बड़ा issue है. उसके बाद ये एक सिंपल सा एक ब्रेकडाउन है कि जो मुस्लिम्स मेल और फीमेल वर्कर्स हैं वो लोग किस एंटरप्राइज में जो है वो काम कर रहे हैं, और उसमें आपको ये देखने मिलेगा कि क्लोज टू 40% ऑफ मुस्लिम्स, एंड दैट इज अ सब्सटैंशियल प्रोपोर्शन, वो अपने खुद की किसी घर की हाउस होल्ड एंटरप्राइज में काम कर रहे हैं, यानी कि उनका घर नहीं चल रहा है, उनका घर परिवार वाला कोई टाइप का बिजनेस है या कोई टाइप की वो मजदूरी कर रहे हैं, तो वो लोग उसी टाइम में जो है वो काम कर रहे हैं. और उसके बाद अराउंड 20% ऑफ मुस्लिम्स जो है वो अपनी किसी फैमिली बिजनेस में ही एक तरीके से अनपेड वर्कर की तरह जो है वो काम कर रहे हैं. तो दिस इज ऑल्सो फेयरली कॉमन इन इंडियन कम्युनिटीज. और उसके बाद अराउंड 26% ऑफ देम जो है ना वो कैजुअल वर्क कर रहे हैं, यहाँ वहाँ मजदूरी और या किसी और की दुकान पे जाके काम कर रहे हैं, तो वो ये है. सो दिस इज अ वेरी वेरी बिग प्रोपोर्शन जो लोग खुद मजदूरी कर रहे हैं. और अगर हम लोग इंडस्ट्री के हिसाब से अगर देखा जाएगा कि किस इंडस्ट्री ग्रुप में अगर वर्क कर रहे हैं, सो नेशनल अगर आप देखा जाएगा तो एवरेज जो है जैसे एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक और उससे रिलेटेड वाली इंडस्ट्रीज में काम करने वाले क्लोज टू 60% नेशनल एवरेज. बट मुस्लिम्स इसमें रिलेटिवली लेस हैं. इसमें जो है वो अराउंड क्लोज टू 40% ऑफ मुस्लिम्स आर वर्किंग इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक, फॉरेस्ट्री. उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग में ज्यादा है क्योंकि मजदूरी वाले काम और कारीगरी वाले जो काम है वो भी जो है वो बहुत ज्यादा हैं, 20%, एंड दिस इज मच हायर देन द अदर नेशनल कम्युनिटीज विच इज अराउंड 12%. उसके बाद होलसेल और रिटेल में भी जो मुस्लिम्स का जो प्रोपोर्शन है वो बहुत ज्यादा है. वो अपना खुद का कोई काम कर रहे हैं होलसेल का, या खुद कोई दुकान खोल के बेच रहे हैं वो लोग, जो भी चीज जो वो लोग डेवलप कर रहे हैं या किसी और की चीज, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी हाई विच इज अराउंड 17%. This is where the Muslims are mostly working. उसके बाद जो बाकी जो इंडस्ट्रीज हैं उसमें उनका प्रोपोर्शन जो है वो ट्रांसपोर्टेशन में रिलेटिवली काफी हाई है मुस्लिम्स, मतलब एज कम्पेयर टू अदर कम्युनिटीज. इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट नंबर्स बिल्कुल नहीं, ऑफ कोर्स. उसके बाद कितने मुस्लिम्स जो हैं वो गवर्नमेंट सेक्टर में वर्क कर रहे हैं, एंड उसमें देखा जा सकता है अगर ओवरऑल सेंट्रल PSUs की बात करी जाए, सो अराउंड only 3% of Muslims are working on in central PSUs, which is significantly less as compared to their population proportion, which is close to 15%. States में जो है इसका recruitment process थोड़ा अलग हो जाता है, तो states में proportion भी जो है वो थोड़ा high है, around 11%, क्योंकि Muslims की जो diversity है, especially उनका socio-economic status, that varies a lot by status. अगर आप साउथ इंडियन स्टेट्स देखेंगे और नॉर्थ इंडियन स्टेट्स देखेंगे, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस इन द वे मुस्लिम्स आर एबल टू डू थिंग्स देयर. सो दिस इज अगेन वेरी 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 लेस एज कंपेयर टू देयर नेशनल प्रोपोर्शन. उसके बाद IAS वगैरह में अगर देखा जाएगा तो ओनली 3% ऑफ ऑल IAS, IFS, सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स आर मुस्लिम्स, बट दिस इज अगेन एज पर 2006. So, which is again significantly less. उसके बाद अगर IAS की अगर हम बात करें UPSC रिक्रूटमेंट, तो उसमें भी एक बात होती है कि there is kind of discrimination, direct discrimination. So Sachar committee they tried to dig data and they got data from 2003 and 2004. उसमें भी उन्होंने जैसे IIMs को उन्होंने ब्रेक डाउन करने की कोशिश की थी, इसमें भी उन्होंने ब्रेक डाउन किया कि what is the proportion of Muslims that are appearing for the civils examination as a part of the different entrance stages. Around 5% of all the candidates who appeared for the written were Muslims, and again
इंटरव्यू में सिलेक्ट होने वाले भी जो कैंडिडेट्स है उसमें क्लोज टू 5% वर मुस्लिम्स, और जो रेकमेंड भी जो हुए वो भी क्लोज टू 5% वर मुस्लिम्स, एंड दिस इज डेटा फ्रॉम 2003 and 2004 and a lot has changed since 2003 and 2004. 2014 has happened, right? So we don't really know what the things are as of right now, but this is one of the good things about here is that again discrimination can be hidden and it's very difficult to judge, but one of the good things that it tells us कि मतलब अगर Muslims अगर इसके लिए prepare करेंगे, if they are able to crack, if we are able to give them the coaching and the necessary guidance, they might be able to crack this like any other regular candidate and get selected in civil services. उसके बाद ये जो है वो सेंट्रल अगेन PSUs के टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की बात है, एंड इसमें ब्रेकअप भी है कि मतलब जो एम्प्लॉय है वो हायर मैनेजरियल पोजीशन में है या मैनेजरियल पोजीशन में है या फिर सिंपल दूसरे टाइप का वर्क जो कर रहा है. सो अगेन इफ यू लुक एट द ओवरऑल परसेंटेज इन हिंदूज, in other communities like OBCs and SC/STs, relative to that Muslims are almost inexistent in PSUs, in central PSUs, or this is again a matter of very big concern. उसके बाद जुडिशरी की अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो अगेन द मुस्लिम्स आर स्टैंडिंग आउट, SC/STs आर मच बेटर रिप्रेजेंटेड इन द जुडिशरी than Muslims, and even OBCs and of course the general category is overrepresented there. If you look at the employment in universities, then again Muslims stand out. Central universities में भी जो Muslims का जो proportion है in terms of the academic and the non-academic staff बहुत ज्यादा कम है. So as compared to all other minorities, all other socio-religious groups, and this is data from 130 universities and 84 colleges. It's not something to be trivialized. उसके बाद इंटरेस्टिंग फैक्ट्स कुछ वक्फ के बारे में, जो इतनी सारी वक्फ की प्रॉपर्टीज हैं, एंड वक्फ के बारे में हम लोग ने स्टार्टिंग में भी जो है वो हम लोग ने काफी डिस्कस किया था प्री इंडिपेंडेंस वाले हमारे वीडियो में, जिसमें हम लोग ने डिस्कस किया था कि कैसे ब्रिटिश पॉलिसीज वगैरह ने जो इम्पैक्ट किया एंड हाउ इम्पोर्टेंट वक्फ प्रॉपर्टीज वर फॉर द ओवरऑल मुस्लिम कम्युनिटी. अभी आज की स्टेट में जो निकल कर आया, जो एटलीस्ट जो स्टैट्स हम लोग को रिपोर्ट देता है, वो ये है कि कुल 5 लाख रजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज हैं वक्फ के नाम पे. एंड अगेन वक्फ प्रॉपर्टीज कई जगह बहुत प्राइम प्रॉपर्टीज हैं, एंड उसका जो पैसा जो है दे आर नॉट फॉर प्रॉफिट. इवन इफ दे डू एंड अप प्रॉफिट, उन लोग का जो मैनिफेस्टो है वो ये है कि वो कम्युनिटी के अपलिफ्टमेंट के लिए पैसा खर्च करना चाहते हैं, और उनका खर्च करना है उनको, वो किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है. सो इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग सोर्स ऑफ डेवलपिंग द कम्युनिटी. सो ऐसी कुल मिला के 5 लाख रजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज हैं, जिनकी मार्केट वैल्यू जो है वो करीब 1.2 लाख करोड़ है. So 1.2 lakh crore is huge. और उसके हिसाब से अगर आप इनका अगर रिटर्न देखेंगे कि अगर इनकी मार्केट वैल्यू 1.2 लाख करोड़ है और इनका रिटर्न जो कितना है वो सिर्फ 163 करोड़ इन सारी प्रॉपर्टीज का रिटर्न है. मतलब ये लोग इतना जो है वो रेवेन्यू जो है वो जनरेट कर पाती हैं और वो कम्युनिटी के लिए फिर अगेन खर्च कर पाती हैं. इट इज ऑलमोस्ट जीरो. मतलब ये काउंट भी नहीं किया जा सकता, ये इतना कम है, क्लोज टू 1% आई थिंक सो, और इवन लेस एक्चुअली. अगर हम लोग ये अस्यूम कर लें कि अगर 10% भी अगर अपनी मार्केट वैल्यू का अगर ये रिटर्न हम लोग को देती हैं अगर कम्युनिटी को एनुअली, तो कुल मिलाकर 12,000 करोड़ का हम लोग को रेवेन्यू इनसे जनरेट होना चाहिए. एंड अगेन 12,000 करोड़ रुपए, इमेजिन इतना सारा पैसा जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी के लिए अपलिफ्टमेंट के लिए खर्च हो रहा है. स्कूल्स, कॉलेजेस, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, हॉस्टल्स, और फॉर वुमेन अपलिफ्टमेंट एंड देयर एम्प्लॉयमेंट. तो इमेजिन कि मुस्लिम कम्युनिटी कहां हो सकती है. बट उसके 12,000 करोड़, 10% इज अ रफ एस्टिमेट, बट इट्स नॉट टू फार ऑफ, राइट. 10% तो अपनी मार्केट वैल्यू को कोई प्रॉपर्टी जो है वो अगर हमको रिटर्न कर दे तो सही है. अगर आपको इस आइडिया को अगर समझना है कि 12,000 करोड़ कितना है, कुल मिलाकर सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2016 में सारे IITs को जो एनुअल फंडिंग दी थी वो पता कितनी दी थी, वो 8,000 करोड़ की दी थी. और ये 10% जो है ये उससे भी 4,000 करोड़ ज्यादा है. अभी कितना IITs हो गए, 16-15 पता नहीं कितने. तो आप समझ रहे हैं कि यू कैन जनरेट सो मेनी IITs
just from this much money if these properties are managed well, अगर इन लोग के थ्रू से अगर स्मार्ट तरीके से रेवेन्यू को निकाला जाता है तो। और कुल मिलाकर जो है वो 6 लाख एकड़ की लैंड जो है वो इन प्रॉपर्टीज में कवर होती है, विच मेक्स the Waqf board the third largest landholder in India after defense and railways, after railways and defense ministry. But again, Waqf में काफी सारी properties हैं and Sachar committee went into a very big detail, और we will discuss these properties and this whole issue in much more detail later on. But some of the problems with the Waqf properties is that कि इसमें सबसे पहली बात तो encroachment हो चुका है, इन पे कब्जा डल चुका है, जैसे हम लोग बोलते हैं, and कब्जा डालने वाले सभी हैं, प्राइवेट लोग भी हैं, सरकारी दफ्तर भी हैं जिन्होंने इन पे कब्जा डाल के रखा है, और खुद वक्फ के मैनेजमेंट के ही कई लोग हैं जो कब्जा करके बैठे हुए हैं इस पे। तो ये एक बहुत बड़ा इशू और एक प्रॉब्लम है। उसके बाद एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को डेवलप करने की इसमें ज्यादा प्रायोरिटी नहीं दी गई है फ्रॉम द वक्फ बोर्ड कि इन प्रॉपर्टीज पे जो है वो डेवलप हो। और उसके बाद करप्शन भी बहुत ज्यादा है इनके मैनेजमेंट वगैरह में, इसमें जो मुतवल्लीज हैं उन्होंने बहुत जगह कब्जा डाल के रखा हुआ है और बहुत अलग अलग टाइप के इसमें प्रॉब्लम्स हैं। उसके बाद कई जगह तो रिकॉर्ड्स ही नहीं है, बहुत बाद में निकल कर आ रहा है कि ये जो है ये वक्फ की प्रॉपर्टी है। So yeah, these were the issues with some of the common issues with the Waqf properties. Now, finally, coming to the end of this section, Government of India ने क्या initiatives लिए हैं उसके बाद सच्चर कमेटी के बाद again हम लोग इसको बहुत ही crudely और बहुत ही जल्दी में हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो पहले तो ये था कि 15 पॉइंट प्रोग्राम्स ये मनमोहन सिंह के टाइम पे भी आए थे, जिसमें एजुकेशन पे फोकस किया गया था, स्कॉलरशिप्स दी गई थी। मौलाना आजाद वाली तो बहुत ज्यादा फेमस है, कई जगह कोचिंग्स जो है वो मुस्लिम्स के लिए खोली गई थी, एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए, सिविल सर्विसेज के लिए। उसके बाद टेक्निकल ट्रेनिंग्स, कई इंस्टीट्यूशंस जो हैं IITs वगैरह जो हैं जो क्विक एम्प्लॉयमेंट वगैरह काइंड ऑफ जनरेट करने की डेवलप करते हैं कैपेसिटी आफ्टर 10 स्टैंडर्ड, वो खोलने की कोशिश करी गई थी, स्पेशली in the districts where the minorities are concentrated. जो एग्जिस्टिंग वेलफेयर स्कीम्स भी थी उसमें भी काइंड ऑफ मुस्लिम्स को ज्यादा टारगेट करने की कोशिश करी गई थी, क्योंकि मुस्लिम्स तक वो जो स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट की जो निकल रही हैं वो पहुंच नहीं पा रही हैं, तो उसमें भी कई टारगेट्स रखे गए थे। उसके बाद बैंक्स जो हैं उनका भी जो है क्रेडिट टारगेटेड मुस्लिम्स को देने की कई पॉलिसीज वगैरह नोट करी गई थी और इम्प्लीमेंट भी करी गई थी कि मतलब मुस्लिम्स को अपने बिजनेस और सब चलाने के लिए उनको एक्सेस टू क्रेडिट मिले। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन में भी काफी पैसा जो है वो खर्च किया गया। मदरसा मॉडर्नाइजेशन पर भी काफी पैसा खर्च किया जा चुका है, बट अगेन दिस इज अ वेरी बिग टॉपिक्स को अलग से देखना चाहिए। उसके बाद उर्दू के प्रमोशन के लिए और उर्दू के जो टीचर्स हैं उनकी जॉब्स, उनकी सैलरीज वगैरह के लिए काफी पैसा खर्चा किया गया। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स बनाई गई अराउंड इन 2006, और वो भी एक ऑटोनोमस मिनिस्ट्री जो इंडिपेंडेंटली जो वर्क कर रही है। फिर उसके बाद कई स्टेट्स ने भी बनाना अपनी अपनी स्टार्ट कर दिया। उसके बाद देयर वर मल्टी सेक्टरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इन MSDPs, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इनके बारे में काफी स्टडी किया जा सकता है। वो ये है कि जो माइनॉरिटी कॉन्सेंट्रेशन जो डिस्ट्रिक्ट्स है वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर लाइटिंग और एजुकेशन, हेल्थ केयर, ये सब की जो इंस्टीट्यूशंस है वो डेवलप किए जाए। दीज वर लॉन्च्ड इन 2006 बाय द यूपीए गवर्नमेंट। उसके बाद जो मौलाना आजाद एजुकेशन फंड था, इसके थ्रू अलग अलग स्कॉलरशिप्स और इंस्टीट्यूशंस को जो है वो डेवलप किया जाता है और डिसबर्स किया जाता है, उसको काफी स्ट्रेंथन किया गया था, उसको पैसा दिया गया था। तो ये तो यूपीए गवर्नमेंट ने लिए थे। ऐसे और भी इनिशिएटिव्स थे जो कभी लिए नहीं गए, दे वर ओनली रिकमेंडेड फ्रॉम सचर कमेटी बट दे वर नेवर इंप्लीमेंटेड। सबसे पहले तो ये था कि नेशनल डेटा बैंक एक बनाया जाए, जिसमें स्पेशली क्योंकि सचर कमेटी को डेटा को लेकर बहुत ज्यादा इश्यू निकल कर आया था, एंड बिना डेटा के कोई पॉलिसी जो है वो फ्रेम नहीं करी जा सकती। सो मुस्लिम्स को टारगेट करने के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए सबसे पहले हम लोग को चाहिए डेटा। सो देयर वाज एक नेशनल डेटा बैंक का एक वो प्रमोट किया गया था आइडिया। उसके बाद एक इक्वल अपॉर्चुनिटीज कमीशन जो है वो जैसे कि ब्रिटेन में है, वैसा एक आइडिया फ्लोट किया गया था कि वी शुड ऑल्सो हैव दिस, जिसमें किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन किसी के अगेंस्ट, किसी भी कम्युनिटी, नॉट जस्ट मुस्लिम्स, अगर किया जा रहा है तो दे कैन टेक अप देयर क्लेम एंड देन दे कैन जस्ट गेट लीगल रिड्रेस थ्रू दीज कमीशंस।
in case of any discrimination. उसके बाद एक चीज ये रेकमेंड करी गई थी, क्योंकि सचर कमेटी ने इस चीज को दिखाया है, एंड इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे कि डिलिमिटेशन काउंसिल जो है उसका क्या रोल रहा है एंड उसको किस हिसाब से रिजर्व किया जाए ताकि मुस्लिम प्रोपोर्शन जो है इन पार्लियामेंट जो है वो इंक्रीज हो. क्योंकि वन ऑफ द डिस्क्रिपेंसीज दैट सचर कमेटी हाईलाइटेड वाज दैट कि ऐसी बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पे मुस्लिम का प्रोपोर्शन बहुत हाई है, ओके, और SC/STs का प्रोपोर्शन वहां पे कम है, लेकिन उन डिस्ट्रिक्ट्स को, उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज को SC/STs के लिए रिजर्व किया गया है. So which kind of created the question कि किस बेसिस पे जो है ये रिजर्वेशंस किए जा रहे हैं, क्योंकि जब मुस्लिम्स का परसेंटेज वहां पे ज्यादा है, सो इट्स मोर प्रोबेबल कि मुस्लिम्स का जो कैंडिडेट जो जीत कर रहा है वो भी एक मुस्लिम रहेगा, सो मुस्लिम्स कैन गेट मोर रिप्रेजेंटेशन इन द पार्लियामेंट. सो ये एक अनॉमली थी और इस पे काफी डिस्कशंस वगैरह हो चुके हैं. इट हैज टू बी कवर्ड सेपरेटली, बट सचर कमेटी रिकमेंडेड कि अब जो हम लोग का जो डिलिमिटेशन काउंसिल जो है वो थोड़ा इस चीज को रिवाइज करे और वो इस हिसाब से कंस्टिट्यूएंसीज को रिजर्व करे जिसमें कोई मुस्लिम्स को एक डिसएडवांटेज ना हो. सो बट अगेन उसमें भी कोई एक्शन अभी तक नहीं लिया गया है. उसके बाद सेंसिटाइजेशन कैंपेन रेकमेंड किया गया था फॉर हेल्थ सेक्टर प्रोफेशनल्स, फॉर टीचर्स, फॉर पुलिस, इस टाइप की जो हमारे जो नेशन के इंपॉर्टेंट सर्विस डिलीवरी के sections हैं उनके लिए, क्योंकि Muslims as we know face a lot of discrimination, there's a lot of Islamophobia especially in healthcare. तो उनका एक sensitization campaign होगा, तो उन लोग को ये चीज रियलाइज होगी कि दिस इज रॉन्ग, मुस्लिम्स आर आल्सो ह्यूमन बीइंग्स. एंड जिस हिसाब से फेमिनिस्ट मूवमेंट ने बहुत सारे जेंडर सेंसिटाइजेशन कैंपेन्स किए हैं और उसके कितने अच्छे रिजल्ट्स हम लोग को देखने मिले, तो उस हिसाब से दीज वर रिकमेंडेड, बट अगेन दे वर नेवर इम्प्लीमेंटेड, दे वर नेवर इवन डिस्कस्ड. उसके बाद प्राइमरी एजुकेशन को उर्दू में डिलीवर करने वाली बात करी गई थी. उसके बाद स्कूल टेक्स्ट बुक्स को भी रिवाइज करने के लिए कहा गया था, क्योंकि देयर इज अ सैफ्रनाइजेशन ऑफ एजुकेशन दैट्स हैपनिंग, द अदराइजेशन ऑफ Muslims is happening at the school level, and बहुत सारी रिपोर्ट्स जो है वो आ चुकी हैं गुजरात और राजस्थान की टेक्स्ट बुक वगैरह की, तो उनके रिवीजन वगैरह के बारे में भी जो है वो सचर कम्युनिटी ने इशू जो है वो उठाया था. So with this we come to the end of our video and I hope you liked it. Please subscribe to our channel. We'll be delivering more such content here, and we'll be covering many of these aspects in much more detail later on. So thank you very much.